व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। आपने थंबनेल देख लिया, यू मस्ट हैव रेड द टाइटल आल्सो। सो यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पुशिंग बायोमैकेनिक्स, चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स एंड हम इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें क्वाड्स भी, बिकॉज वाइल वी डू लेग एक्सटेंशंस, लेग प्रेस और द बेसिक स्क्वाट्स वी आर एक्चुअली पुशिंग द वेट अवे। सो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल to get the information about the real fitness and nutrition, and also press the bell icon to get the latest notifications about my videos. So it's all about real content over here. If you are looking for a help with your fitness regime and nutrition, this is the right place to be. So हम बात करेंगे पुशिंग बायोमैकेनिक्स की। मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगा सिंगल एक्सरसाइज जो कि होगी इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस, and I'm going to keep it very simple in a very basic language. I'm not going to use much jargons, just to let you know, just to let you understand the basics. Once you understand these basics, I can guarantee after watching this video, if you apply this training technique in your fitness routine, the growth will be 80% higher, but the amount of loads you are using currently will drop down up to 60 to maybe 70% also. So as you can see this side, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा do's है, ये मेरा don'ts है. Watch both the videos very clearly and analyze what is going wrong over here and what is right over here. The difference between these two. जैसा कि आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, which is the right one, you can see मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नीचे से. So my chest is up, my lower back is arched, मेरी lower back और बेंच में कोई गैप नहीं होना चाहिए. My toes should be under my hips. So I am on my toes so that मेरी बॉडी एक यूनिट की तरह यूज़ हो रही है and मैंने डम्बल्स को ग्रैब नहीं किया है बहुत टाइटली. So my palms are basically I'm holding the dumbbells on my palms like this, as you can see over here. मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ and you can see my neck is floating in the mid-air because my body is relaxed, so I'm not stiff. And as I push the weight up, as you can see here, as I lift the weight up, I push my head back onto the bench. So basically यहाँ पे जब मैं पुश कर रहा हूँ वजन को, तो मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि मैं उस वेट को अपने से दूर पुश कर रहा हूँ और मैं अपनी बॉडी को पीछे बेंच पे पुश कर रहा हूँ. As compared to over here, as you can see, यहाँ पे मेरी बॉडी एक सिंगल प्लेन में है. मैं यहाँ पे मूवमेंट कोई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं डंबल्स को ज़्यादा नीचे लेके आ रहा हूँ. यहाँ पे आई एम होल्डिंग द डंबल्स एट द बॉटम पोजीशन फॉर एटलीस्ट अ सेकेंड और मे बी 2 seconds. You can see I'm very relaxed at the bottom position as compared to over here, जहाँ पे मैं रिलैक्स नहीं हूँ नीचे, मैं नीचे आने ही नहीं दे रहा हूँ वेट को, and I'm just jerking off with my front shoulders. Here I'm not doing ego lifting. Here my mindset is all about ego lifting. This is the basic difference. आर्च मैंने वही मेंटेन की है जो यहाँ की है, वही मैंने यहाँ की है, बट यहाँ पे मुझे लोड से मतलब है and मेरी रिस्ट पोजीशन is not up to the mark as I'm using in this video. So जैसा कि आपने दोनों वीडियोस में देखा, ये डूज था, यहाँ पे डोंट्स वाली वीडियो थी. हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. Now I'm going to tell you from front and from the side angle कि basically मैं वहाँ पे कर क्या रहा था. जब आप बेंच पे सेटअप करते हो अपने आप को, always remember, for example I'm showing you from the front. जब आप बेंच पे सेटअप करते हो आपका सारा लोड पाम्स पे होना चाहिए. सो आपका हाथ हमेशा इस पोजीशन में होगा. नो मैटर आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो या आप फ्लाई कर रहे हो, आपका हाथ इस पोजीशन पे होगा. कोई भी हैंडल किसी भी मशीन पे अगर आप बैठे हो, वो सिर्फ यहाँ पे स्टैक करेंगे, सिर्फ रखेंगे and you will just cup it. So you are not going to grab it, you will just cup it like this. So this will be your starting position and it will create a lot of impact. And to all those people who term it as a false grip, वो false grip तब होगी अगर आप इसी सेम चीज़ को, जो थंबलेस ग्रिप है जिसमें थंब अंडर द बार होता है, इसी सेम चीज़ को आप ग्रिप को ये कर दोगे, then it is false grip. Now the bar can fall off because it is not stacked in the palms. You have to guard your fingers to stack it. But यहाँ पे अगर आप इस पोजीशन में अपने palms को रखते हो, अब आपको guard करने की ज़रूरत नहीं है. Because as soon as you do this
दिस इज द मोस्ट स्टिफेस्ट पाथ यू कैन क्रिएट फॉर द रिस्ट। ये इतना स्टिफ है कि आप यहाँ पे 20 किलो का भी डंबल रख लो, 25 किलो का भी रख लो, आपका हाथ कहीं नहीं जाने वाला, डंबल्स कहीं पे भी नहीं जाएंगे। Pay attention to this detail. Everything is over here which no one talks about. They never talk about this. This is the main concern. Just stack the dumbbells over here and let the palms take the load. Stacked in the elbow joint now. क्योंकि अब ये पूरा एक joint बन गया है, ये पूरी एक chain बन गई है, ये बहुत strong है. You just have to push it away. So what you have to do is you have to keep your palms like this, wrist open like this, chest up, lower back arched, as you must have seen in the video. What you will do is, जब भी आप ब्रेक करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीटेड मशीन चेस्ट प्रेस की बात करता हूँ, तो लोग ब्रेक करते हैं बाहर की तरफ अपनी एल्बो को, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जैसे ही आप बाहर की तरफ ब्रेक करते हो, आप अपने चेस्ट को लिफ्ट अप नहीं रख सकते हो। आप जब यहाँ से पुश करोगे तो आप अपने शोल्डर ब्लेड से, फ्रंट शोल्डर से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करोगे एज कम्पेयर टू चेस्ट। योर चेस्ट इज ऑफ बिकॉज यू आर नॉट फॉलिंग अवे फ्रॉम द बार, यू आर जस्ट मैन हैंडलिंग इट। आप सीधे से प्रेस कर रहे हो, डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो प्रेसिंग, but it's not the best form of pressing. The best form of pressing is जब आप सारा लोड को इतना ढीला रखोगे कि आपके हाथ में कोई टेंशन नहीं है, आपने सिर्फ मशीन से आपने स्टैक पे हटाया एंड लोड सारा हाथ पे, अभी चेस्ट अप, लोअर बैक आर्च एंड नेक न्यूट्रल। नेक की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आपकी आईज एक जगह हो और आपका नेक न्यूट्रल हो। डोंट मूव द नेक, डोंट चेंज योर आईज पोजीशन, बिकॉज एज सून एज यू चेंज द आई पोजीशन आपके नेक में स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। So always remember that. So I don't want you to break your elbows over here. I want you to break your elbows down. So what is happening is I'm under the weight. अब मैं weight के अंडर हूँ, यहाँ मैं weight के अंडर नहीं हूँ, weight को मैं ला रहा हूँ and मैं अपने shoulders joint पे, front shoulders पे ज़्यादा impact create कर रहा हूँ। So what I want to do is just break the elbow down, let it drop, drop, drop and rest here. If you can feel relaxed over this position, you are doing it right. यहाँ पे अगर आप काम हैं, कंपोज्ड हैं और आप फील कर पा रहे हैं स्ट्रेच ऑन द चेस्ट नॉट ऑन द शोल्डर्स, इसका मतलब आपका लोड सही है, आपकी टेक्निक सही है। इस पोजीशन से आप क्या करोगे, आप एक धक्का लगाओगे, यू विल डू दिस एंड ब्रीथ आउट एंड पुश योरसेल्फ बैक ऑन टू द पैड। सो अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेयर एवरीथिंग चेंजेस, एवरी सिंगल डैम थिंग चेंजेस। अ माइन्यूट डिफरेंस कैन मेक अ लॉट ऑफ ग्रोथ in a very short amount of time. So what you will do is just push your chest up, एकदम से चेस्ट को पुश करना है, हाथों को सामने पुश करते हुए अपने आप को पीछे पुश करना है, और जितना स्लो आप यहाँ से निकलोगे उतना कम आप शोल्डर एंगेजमेंट फील करोगे। एक बात याद रखिए, शोल्डर इन्वॉल्व होता ही होता है, बट द आइडिया इज टू मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट। उसके इम्पैक्ट को हम कितना कम कर सकते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू इंक्लूड मोर मसल फाइबर्स ऑफ द चेस्ट, नॉट ऑन द शोल्डर्स। सो ऑलवेज रिमेंबर 20% इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, मे बी 10%, 90% आपका चेस्ट एंगेज रहेगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट फ्रॉम साइड व्यू, साइड से कैसा लगेगा जब आप इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे बेंच है, मेरी पोजिशनिंग होगी, यहाँ पे गैप होगा, मेरे लोअर बैक और बेंच में गैप होना चाहिए। There should be air. Chest up, shoulders back. Retract it. As I told you, never start the movement over here. Start the movement from the bottom. So handles को यहाँ पे रखेंगे, handles और maybe dumbbells, whatever piece of equipment you are using, यहाँ पे रखेंगे। neck को पीछे की तरफ लॉक करेंगे, neck body से alignment से बाहर नहीं होगा, neck को पीछे रखेंगे in aligned with the spinal cord. Now what you will do is eyes at one point. Chest up, I will now push, very slowly push, so that my shoulders remains less engaged. मेरे shoulders की strain कम आए, बहुत तेज़ी से push नहीं करूँगा, I don't want to jerk. So slow push, push, breathe out. I'm pushing myself onto the pad as I'm extending my hands. As soon as I reach to the full contraction, so I'm not concerned about कि मुझे अपनी elbow को straight करना है. Never be concerned about this कि elbow straight करनी है, सिर्फ contraction लो, feel the contraction, दोनों हाथों को पास लाना है, like this, पास लाना है। So when you push, you are making an arch basically. So contraction लेना है, जैसे चेस्ट में पूरा contraction फील होता है, immediate drop. As I told you, drop करते टाइम बाहर elbows को flare out नहीं करना है, keep the elbows in, let it fall. Fall होने दो अपनी तरफ, chest up रहेगा, now push. So let it come, come, come. You can see my neck movement जो मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया,
ग्रुप वाली वीडियो में you can see my neck movement. So let to be drop, push. So my neck is moving with my body. मेरा neck body से अलग move नहीं कर रहा है आगे पीछे. It's whole body. So from neck to the base of my spine. Neck से लेके spine ये पूरा is one piece moving. Always remember this is a one piece moving. So I started from over here, bottom part, push, breathe out, get the full squeeze. Let it drop, drop, drop. ये अपने आप रुकेगा, यहाँ पे आपको रोकना नहीं है. Don't hold the tension over here. If you are calm and composed at the bottom range, you are doing it 100% right, and you will feel more chest. Push, breathe out, let it drop. Push, breathe out. You should be relaxed. आपको ये फील होना चाहिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वजन को ट्रांसफर कर रहे हो, लोड को ट्रांसफर कर रहे हो. ए से बी की तरफ आ रहा है, जैसे ही बी की तरफ आप इकट्ठा कर रहे हो, आपको पूरा स्ट्रेच फील हो रहा है ऑन योर चेस्ट. Just push away, don't do this. एक जगह पे बैठ के ये नहीं करना है. If you can't push yourself back onto the pad, you still have to learn a long way how to move that load from A to B. So apply this technique, and I hope you understood the biomechanics of the pushing muscle. Use this technique in every pushing muscle, जैसे chest, shoulders and triceps. आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, आपको स्टैक करना है हर चीज़ पाम्स पे एंड कप करना है. शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है ऑल द टाइम एंड अपने पोस्टीरियर चेन जो है आपकी फ्रॉम द स्कल टू द बेस ऑफ योर स्पाइन इज वन पीस मूविंग. ऑलवेज रिमेंबर दैट एंड नेवर कीप योर बॉडी स्टिफ. बॉडी को जितना स्टिफ आप करते चले जाओगे, सेकेंडरी मसल, असिस्टिंग मसल्स उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व होती चली जाएंगी. बॉडी जितना रिलैक्स रहेगी, जितना नेचुरल पोजीशन में रहेगी, उतना बेटर आपकी ग्रोथ होगी. बिकॉज सबका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, फील सब डिफरेंट करते हैं. सो यूज दिस बायोमैकेनिक्स एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. लेट मी नो हाउ यू फेल्ट इट आफ्टर इट्स एप्लीकेशन एंड ट्रस्ट मी, इसको आप 1 month यूज करके देखिए. द अमाउंट ऑफ ग्रोथ यू विल सी इन योर चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स विल बी अनमैच्ड. बट ऑब्वियसली यहाँ पे आप ईगो ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आपको वजन ड्रॉप करना पड़ेगा. एंड डोंट हैव दिस मेंटेलिटी कि इफ यू आर ड्रॉपिंग द लोड यू आर श्रिंकिंग. नॉट बाय एनी चांस. यू श्रिंक बिकॉज ऑफ योर डाइट, बिकॉज ऑफ योर नॉट एडिक्वेट रेस्ट. सो विद मिनिमम रिस्क ऑफ इंजरी हमारा कम हो जाता है जब हम लोड को थोड़ा कम करते हैं एंड कनेक्ट ज़्यादा अच्छा करते हैं. सो कनेक्ट मोर. व्हेन यू पुश, थिंक यू आर पुशिंग विद पाम्स. ये आपको दिमाग में सोचना है कि आप उस वजन को पाम से पुश कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड माइंड मसल कनेक्शन. इफ योर ब्रेन इज नॉट इन अलाइन विद योर वर्किंग मसल एंड यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, you are definitely not going to grow. I hope you liked the video. Do like it, subscribe to my channel for more informative videos, in-depth informative videos like this. See you guys in the next video.